Hello, all. Very warm welcome to all of you, my dear friends. And this is Dr. Mahesh Mahajan, and I welcome you all. This remedy is a very wonderful remedy, an orthodox remedy, the most well acting, deep acting, wonderful remedy. Some use it for cancers, for prostate, for urine problems. For the students, I would like to tell you this remedy is for keynote symptoms stony hard glandular hardness of the glands. Yes, you are right. The remedy is Conium maculatum. Let us understand how Borik sir wants to express this. Then I'll come to my understanding and how the physical materia medica is being, matched with the mental generals, the mentality, the nature of Conium patient. Let's ascending type of paralysis, ending in death by failure of respirations, ultimate tendencies, and all those things. Excellent remedy for gait, trembling, sudden loss of strength. Sudden loss of strength. A special remedy for debility, hypochondriasis, urinary troubles. I'll tell you what is urinary troubles. Weakened memory, sexual debility, troubles at the change of life. I'll tell you what is the change of life. Old maids and bachelors. Growth of tumors, stony hardness, cancerous diathesis, enlarged glands, you know, acts on the glandular system, engorging and indurating. ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको माइंड बताऊंगा तब पता चलेगा. Insomnia, multiple neuritis. अभी let us understand a person. Conium. I'll explain it with the help of a case of diabetes. A 47-48 years old man came to me. Lean, thin, emaciated, loss of weight 6-7 kgs within 2 months. Has to strain for urination, wants to strain for urine pass drop by drop, has to go every hourly for urination, immense thirst, hunger increased, appetite increased. So the wife told that, doctor, I am telling him since last 1 year, check your blood sugar levels, check your blood sugar levels. Your father is a diabetic, your mom is a diabetic, check your blood. He is so pessimistic about this, doctor. Now, this is a very important line about Conium. I asked this patient, why don't you go for a blood checkup? He said, no, doctor, no way, I can't see my blood sugar rising. I can't see it. I don't want to check it. Come what may, I let you, if you want to give me medicines for diabetes, you can give me like that, but don't ask me to check my diabetes. No, never ever. Why? Sir, when the blood sugar level rises, the people say you don't eat rice, you don't eat, you have to avoid rice, you have to restrict rice. And restriction of rice is like, sir, restriction of rice is like me. I cannot sleep. I can't sleep without eating rice in the dinner. I eat chapatis, bread, and bhakri in the afternoon, but I can't survive without rice. Have you ever gone through such people who says I cannot survive without rice? Or they say, sir, mango is my life. Mango is my, हिंदी मराठी में बोलते हैं माझा जीव की प्राण है वो आंबा माझा जीव की प्राण है मी नाही सोडू शकत. Who told you that you have to quit it? No, I know when you suffer from high blood sugar levels, you have to quit mangoes, you have to quit ice creams, sugar, sweet things. I just can't, sweet rasgulla is my life. It's my life. I can't stay without it. And if you tell me quit this, I'm not able to say. How can I explain you? This is not done. I don't want to go for any test. You just give me. If you say I control for a few days with a big heart, I will definitely control. But don't ask me to stop them permanently. It is impossible for me to stay without mango and rice. My God, this is impossible. And I said, yeah, what is this guy talking about? Isn't it a very peculiar? Isn't it that this person is not ready to go for any checkups? Just like hyoscyamus. Hyoscyamus also does the same.
But what Hyosamus is fearful about his disease. Hyosamus doesn't know about the worst part of his disease. Hyosamus doesn't want to know the exact diagnosis, because he feels, if I will go through that state, I will, how can I cope up? I don't want to dare, I don't dare to see those diseases. I don't want to. If people will, then the people will try and error on me, they will do such things on me. That is Alzheimer's. But conium, the exact understanding of conium, not going for any blood test, not going for any MRIs, not going for any checkups, is, if anything comes out, if anything disease comes out, I have to, take a break, not a break, I had to quit sugar, quit this, quit that, and it is impossible for me. I just can't stay without it. Have you ever encountered this? And isn't it a very interesting remedy? Gupta sir and Monti sir both sir have taken this wonderful remedy. I could still recollect a person who was not able, who was not ready to check his blood. Why? Because he had a strong feeling that, what if I have this? I may, I may be suffering from HIV positive. I don't want to go for any checkup, because what if? What if? But it's not like Hyosamus. So I told him, or the Mohanty sir asked him, "अरे ठीक है ना, हुआ तो क्या? नहीं, then what?" So I don't want to go with this. I just can't go. I just don't want to see that. Everything of my life will be, ending if I don't have to do anything. This was something which was an eye opener. The rubrics are very interesting. Light shuns. Light shuns means what? Not allowing the light to come inside, because if at all the light comes, then everything will be exposed, and if at all that gets exposed, I am gone, because I have to restrict myself on doing whatever things which I used to do easily. Khana, pina, maja marna, sab kuch. I had to restrict. I had to quit. I had to stop. And वो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी. That will be a big problem for me. It's like, my God, I can't. And for that matter, there is a wonderful rubric called sadness, continence from. Now, continence means, what is continence? Continence is something, an ability or a quality of an individual to control his emotions, feelings, and especially desires, deep desires, cravings. I can control this. I can, okay. You can, okay, Doctor Sir, if you ask me, if you don't drink tea, it's okay. I will quit tea for 3-5 months. Conium patient, no, tea is my life. वो तो मेरा अमृत है. How can I begin my day without a tea, man? Come on, I can't control. I just can't control. And if you do that, doctor, actually, what is the meaning of life if I'm not drinking tea? What is the meaning of life if I'm not eating rice? Rice is like life for me. Life is like, sadness, continence from. We have rubric ailments from celibacy. What is celibacy? Celibacy is a thing which gives you immense pleasure, which is a basic instinct of your life. You cannot survive without that. You cannot just stay without it. And you know the taste of that. That taste, वो चीज जब मैंने चखी, वो चखने के बाद मुझे समझा कि इतनी सुंदर चीज है. और सेलिबसी में क्या होगा, आपको उस चीज को रोकना पड़ेगा. यू हैव टू अवॉइड इट, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट. व्हाट? द थिंग which was giving you that amount of pleasure at the level of orgasm, that श्रीखंड और पुरी, हाय 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 हाय. श्रीखंड पुरीचं प्रश्न ते ओढून टाकायला लागेल. श्रीखंड पुरी, डॉक्टर साहब, मेरी जान है. श्रीखंड श्रीखंड नहीं तो जिंदगी में क्या है, लाइफ में क्या जीना है? वी आर रूब्रिक मटेरियलिस्टिक. अरे श्रीखंड मटेरियलिस्टिक में कौन आयम है? अरे श्रीखंड श्रीखंड है ना. तेरी जिंदगी है क्या? ऑक्सीजन है श्रीखंड? पानी है क्या? श्रीखंड है यार. इंस्टेड ऑफ श्रीखंड यू कैन कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसके लिए. नहीं डॉक्टर साहब, खलास. वी आर रूब्रिक, गुप्ता सर ने बहुत बढ़िया सिखाया था,
फियर ऑफ रॉबर्स का मतलब क्या डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जिसके मेरी मजा कोई छीन न ले जाए, मेरी मेरी मजा कोई मेरे तिजोरी से, मेरी मजा जो है वो मेरी जिंदगी है, उसको पैसे, इस इज नॉट, कोनाम इज नॉट इन द रूब्रिक इन वेल्थ बिजनेस, इसमें नहीं है, उसका जिंदगी है ना मजा है, मौज है, मस्ती है। और फियर ऑफ रॉबर यानी मेरी जो तिजोरी में जो मजा रखा है, जो मस्ती है, जो मजा करता हूँ मैं, लिबर्टिनिज्म में कौन आया मैं, मुझे मस्ती करना है, और उसमें फियर ऑफ रॉबर यानी वो ऐसा कुछ ना हो जाए जो मेरी मस्ती मुझसे छीन ली जाए, इसका डर उसको होता है, इसलिए रिपोर्ट्स नहीं करता है। सो कोनाम में एक रूब्रिक है फिजिकल में कि हार्डनेस ऑफ ग्लैंड्स। हार्ड का मतलब क्या है, स्टोनी हार्ड का मतलब क्या है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है, हार्ड यानी जो बदलता नहीं है, हार्ड का मतलब है जो टूटता नहीं है, हार्ड का मतलब है जो वैसे के वैसे रह जाता है। ग्लैंड्स में भी ऐसा ही, क्या मतलब कैसा होता है कि ही डजंट चेंज हिज थॉट, बोले नहीं ऐसे, डॉक्टर साहब 2 साल उसने ब्लड चेक नहीं किया, सी द हार्डनेस ऑफ हिज इमोशंस, अगर कुछ निकला तो प्रॉब्लम हो, वो दूसरा सोल्यूशन देखते नहीं, नहीं यही होगा, यही होगा मुझे, अरे बोले ये सब हो भी सकता है कि शुगर नॉर्मल हो सकती है, नो नो नो, मुझे कुछ करना ही नहीं, ये वी हैव रूब्रिक नैरो माइंडेड का मतलब क्या है, नैरो का मतलब मोदी सर ने बहुत अच्छी तरह सिखाया था, नैरो माइंडेड की एक रास्ता जो छोटा होता है, एक रास्ता जो अगर छोटा रास्ता है तो एक ही गाड़ी एक जगह से जाएगी, आगे से अगर गाड़ी आएगी तो क्या होगा, रास्ता बंद होगा, तो दूसरा कौन सा भी थॉट वो आने नहीं देता है, ये होता है नैरो माइंडेड का मतलब, अरे ठीक है ना, नहीं नहीं मुझे चेक करना ही नहीं है बस, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी वो इतना अपने बीमारी को आसानी से लेता है, हल्के में लेता है, क्योंकि उसका रूब्रिक है फ्रीवुलस, टेकिंग थिंग्स कैजुअली, अरे ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा क्या है ना, सैडनेस कॉन्टिनेंस फ्रॉम का मतलब क्या है, मुझे ये कंट्रोल करने की जो ताकत मेरे में बिल्कुल नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता, ये कोनियम की जान है। इसीलिए व्हाट इज यूरिन, यूरिन में क्या होता है, यूरिन आप इजीली पास करते हो कि नहीं, 1 लीटर पानी पियो और देखो यूरिन इजीली पास होती है, यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट, लेकिन ये बंदे को यूरिन को कंट्रोल करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, डॉक्टर साहब आई कैनॉट, अगर हुआ तो मुझे जान, क्या है ये, इसका यूरिन कंट्रोल नहीं है, ये इधर का कंट्रोल उसका वीक है, इसका प्रॉब्लम है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिबलिंग हो जाता है, वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता है, दिस इज ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि उसका इधर से ही कंट्रोल नहीं है, छोटी छोटी बात का कंट्रोल नहीं है, तो यूरिन का प्रॉब्लम आएगा ही। सो जोइन एंड जयंता, ये दो एचएफ की जेजे की जोड़ी बोलते हैं हम लोग, जेजे की जोड़ी है ना, जैन जोइन, तो ये भी हमारे साथ है, ये हम लोग कोनाम का मैं वीडियो बना रहा था, तो थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहोगे तो बोलो यार, मैंने 10-12 मिनट ऑलरेडी बोला हूँ, you can add a small case with your understanding if you can. कोनाम का सबसे बढ़िया मुझे जो सीखने मिला वो मोंती सर से सीखने मिला, जब उन्होंने डायनामिक्स में सिखाया था, बोला था लास्ट 2 मिनट, आधा 5 मिनट पहले बोला था, तो सर ने इतना बढ़िया बताया ना, वो पेशेंट जो है इतना बड़ा बड़ा फाइल का गड्ढा लेके आता है, सेम कंप्लेंट, वो हमेशा वही बोलता है कि मेरे को सम फॉर एग्जांपल मुझे स्टोन है या पीलिया है, सारे रिपोर्ट नेगेटिव है, बंदा फिर भी आड़ा हुआ है कि मुझे पीलिया है, आप पीलिया की दवा दो, पीलिया है पीलिया की दवा दो, पीलिया है पीलिया की दवा दो, तो देखने में आपको लगेगा लाइट डिजायर है, लेकिन लाइट मिलने के बाद वो लाइट का कर क्या रहा है, ये लाइट क्षण से देखा। अभी दूसरा, जब ये दूसरी बाजू है, एक मैंने जो पेशेंट बताया जो रिपोर्ट करने को ही नहीं चाहता है, वो रिपोर्ट में पर्दा डालता है, और एक होता है ना, जैसे इतना रिपोर्ट सारा है और रिपोर्ट्स होने के बाद भी वो अपने आप को बोलता है कि नहीं, एग्जैक्टली मेरे को पीलिया ही है, क्योंकि मैं झाड़ता हूं ना तो पानी पीला ही निकलता है, झाड़ता हूं तो पानी पीला ही निकलता है, रिपोर्ट कुछ भी बोलने दो, बंदा अड़ जाता है, अड़ नहीं जाता है, उसके दिमाग में वन वे ट्रैफिक है, वो
आपका राइट वो पहुंचता ही नहीं। 2 मिनट पहले बोला था क्विट है, मैंने क्विट अभी ये दोनों आए तो मैंने हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, ऐसा ही वो चालू है। देखो ये नैरो माइंडेडनेस है एग्जैक्टली, नैरो माइंडेडनेस, Fixed सुपरस्टिशियस, ideas. नैरो माइंडेड, लाइट शंस कोनाइम, प्लस इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशनेबल। राइट। कोनियम के मन में एक इम्प्रेशन बैठ जाता है, और वो इम्प्रेशन एक बार बैठ गया ना तो निकलने की बहुत कोशिश करने के बाद भी निकलता नहीं, क्योंकि वो 100% उसको फर्म समझता है और उस चीज को छोड़ता ही नहीं सर। उसकी सुई उधर ही अटक जाती है। एग्जैक्टली। आगे कोई कितना भी बोलो, कितना भी लाइट दो, उसके दिमाग में प्रकाश पड़ता ही नहीं। बोला हाँ बोला, ऐसा लगता है पत्थर के सामने अपना सिर मार रहे हो, अरे बाबा नहीं है पी लिया, लेकिन डॉक्टर साहब वो पीलिया की दवा डाल देना। हार्डनेस दो, एक 5 मिनट बोला था हम लोगों ने, हार्डनेस ऑफ द ग्लैंड्स है ना, दिस इज द हार्ड नेचर ऑफ कोनायम। राइट। This stony hardness, not able to bend, not able to flex, not able to adjust with others' view. राइट। Again, Conayam maculatum. Superstitious sir, एक नंबर का Superstitious. superstitious. आपको रस्टॉक्स लगेगा कभी कभी, बहुत नजदीक है रस्टॉक्स। फियर सुपरस्टिशियस आप लोगे, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिया लगे, आप स्ट्रामोनियम दोगे, कैल्क्रेकार दोगे, बहुत 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 से रेमेडी दोगे जो फियर वाली है, लेकिन वो कोनियम भी हो सकता है। एक जैसे इसने बोला ना, बहुत बढ़िया बोला कि मेरे को पीलिया ही है भाई, बस पीलिया ही है। पीलिया, जैसे मैंने एक पेशेंट था मेरे पास एक पेशेंट था, वेरी इंटरेस्टिंग पेशेंट। हिज वाइफ यूज्ड टू टेल मी, सर ना इसको दवा दो रे कुछ, ये किसी का सुनता नहीं है, बहुत जिद्दी है। मैं लोग व्हाट हैपेंड, शी टोल्ड मी कि आई एम टेलिंग हिम सिंस 7 years, invest in mutual funds, invest in mutual funds, invest in mutual funds। जब भी कोई फाइनेंस आता है, फाइनेंस तो क्या करता है, नहीं वो अपना, मैं नाम नहीं लूंगा, उधर ही डालते हैं। कितना भले कैसा हो, वो मुझे सेफ चाहिए, मुझे सेफ चाहिए, आई डोंट वांट, बट अरे एम आई म्यूचुअल फंड भी उतने ही, नहीं मैं उधर ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं। अरे उधर रिटर्न ज्यादा मिलेगा नहीं। इम्प्रेशनेबल प्लस सुपरस्टिशियस प्लस नैरो माइंडेड, ओके। और तो सिलेबसी वाला वो सेलिबसी वाला तो हो गया वो पूरा। तेरे को बोलना है, नहीं हो गया तो बोल देना। वही उसको जो सिलेबसी है ना, उसको अगर डॉक्टर उसको बोला ये मत खाओ वो मत खाओ, तो भी उसको बीमार पड़ता है। वो एलिमेंट फ्रॉम सिलेबसी वाला है। वो बोलते नहीं डॉक्टर साहब मैं जी ही नहीं सकता, राइस के बिना तो मुझे नींद आ ही गई नहीं। हाँ। वो हो गया। एक बहुत मजेदार किस्सा निखिल सर ने बताया था उनका हाँ। एक पेशेंट का। हाँ। वो बंदे ने, अच्छा उसका धंधा चलता था, बिजनेस था कपड़ों का वगैरह, उसका 5 बजे वगैरह वो वाइंड अप कर लेता था, मस्त दोस्तों के साथ जाता था शाम को, अच्छा खासा उसका चलता था। बाद में उसने दूसरा डाला, वो भी सॉलिड रॉकिंग चलने लगा। उसके बाद वो बीमार हो गया। बोलता इतना रॉकिंग चल रहा है, बीमार क्यों गिर रहा है? तो बोलता वो शाम का टाइम तो दोस्तों के साथ मजा मस्ती होता था ना उसका, हाँ। वो बंद हो गया उसका। ऐसा ना, एक ना ऐसा बोरिक सर ने, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, आफ्टर सम इवेंट्स देयर इज अ रूब्रिक कॉल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्चून। कल तक डॉक्टर साहब सुबह उठने का कड़क मीठी चाय पीता था, साला आज से बोलते हैं डॉक्टर साहब चाय नहीं पीना है, डायबिटीज है। तो जिंदगी ना, ये जीना भी क्या जीना है डॉक्टर साहब। कोनायम मैकुलेटम। सो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, 15th and 16th of August, राइट। V3 and Dr. Milind Naik यस। from Mumbai, Thane, we are 1 2 3 4 चारों मिलके साथ चलेंगे, करते चमत्कार। यस। HHF अथांग 6। राइट। 15 and 16। और कैसा है आपका केस? तो मैंने देख लिया इसका केस, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक ध्यान में रखना, मैं एक बार बोला ना कि मिस मत करो, तो प्लीज मिस मत करो। एग्जैक्टली। अथांग 5 में बोला था, क्यूप्रम के टाइम में भी बोला था कि मिस मत करो। जिन्होंने अटेंड बोलते ना सर, नशीब में अटेंड केला वाट लागली असती, क्योंकि 5 साल नहीं है, 5 साल में क्यूप्रम नहीं लूंगा। सेम ही विल नॉट टेक द सेम रेमेडी फॉर 5 years। यस। आपका क्या है सर? मेरा सर, इसका भी देखना है। अभी हम लोग आज मिलके चर्निंग करने वाले हैं, क्या बोलने का क्या नहीं बोलने का, क्या पंचेस मारने का। यस,
तो अभी मयूर सर के क्लिनिक में आए तो today's tip, wonderful tip. So Just- today's tip. So today's remedy, so Atang's remedy, very wonderful remedy, very wonderful rubric. डे टू डे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे. उसका एक वन लाइनर देता हूं आपको कि ऐसा नहीं है कि वो मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा नहीं है, वो मेरा है पर सिर्फ मेरा नहीं है. क्या बात है? ये इसका वन लाइनर है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस है, वेरी वंडरफुल केसेस, वंडरफुल रूब्रिक्स. सर आपके पीछे Wonderful rubric, wonderful tip. Don't miss it for the world. I'm telling you. यस यस. अच्छा, HCF में क्या होता है ना, एक दिल दोस्ती होम्योपैथी होती है. हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि हो गया, हाँ थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं. हम लोगों को आपको आपके दिल के भी दिल में वो रेमेडीज छापनी है. तो हम लोग अभी बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, रेमेडीज डिस्कस करेंगे. अभी वहाँ से क्रिश आएगा, निखिल आएगा. ऐसा लगे ना हमारा तीनों का ही, सिर्फ तीनों का है. अभी वहाँ से क्रिश आएगा, निखिल आएगा, अमोल आएगा. हम लोग सब लोग मिलके वो केस को, राजू आएगा, और हम लोग उस हमारे केसेस को और कैसे इजी हो सकते हैं और कितने आसान हो सकते हैं. अभी यूट्यूब में इसलिए हम लोग आराम से विस्तार में बोल सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं जो अटेंड करने वाले, उनको वो पेशेंट उनके क्लिनिक में दिखना चाहिए. वो अगर नहीं हुआ ना तो फिर वेबिनार करें? फ्लॉप. बराबर. Okay, so 15th and 16th of August, please don't miss it for the world. मेरी रेमेडी जो है वो रेमेडी, बोले ना, एक थकेला आदमी, एक आम आदमी, परेशान आदमी, अपने खाने में, अपने पीने में, अपने बॉस में, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, बेचारा एक थकेला आदमी केस. और ये रोजमर्रा की रेमेडी की केसेस है, बहुत ज्यादा काम में आने. अत्याचार सर. And for all those general practitioners also, I appeal you all, my dear general practitioners, this remedy will be coming in your clinic as well, and you can give this remedy just like this. This is what I promise. So, anything else? जो इनका उसने मैं 2 केसेस ला रहा हूँ, एक ही फैमिली के, एक माँ और एक बेटी. हॉरिबल IPR सिचुएशंस, दोनों ने कैसे अडेप्ट किया. भयंकर, एक तो मेंटल पैथोलॉजी, एक तो मेंटल पैथोलॉजी है, डिप्रेशन, और दूसरा टीबी विथ सुपर इम्पोज. वो मेंटल डिप्रेशन क्या लेवल तक है बता ना. इस लेवल तक कि वो लड़की, वो 26 साल की सेरिब्रल पाल्सी वाली लड़की गवर्नमेंट को लेटर्स लिख रही है कि मुझे यूथेनेसिया का परमिशन दो, कि मुझे जान लेने की परमिशन दी जाए. इस हद तक वो थक गई है अपनी लाइफ से. उसमें से वो कैसे बाहर आती है, कैसे उसकी माँ अपने सिचुएशन से बाहर आती है. और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 2 रेमेडीज की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल है. आपको क्लिनिक में यूज करते आएगा, ये गारंटी. और आप- हाँ बोल. आप सोचो, जो एक लड़की भीख मांग रही है गवर्नमेंट से कि मुझे मरने की परमिशन दो, और उसको होम्योपैथी ने बाहर निकाला, और होम्योपैथी बाहर निकाल सकती है. वंडरफुल केस जो और क्या है ना, ऐसे केस में देखना क्या है, एग्जैक्टली. what is to be seen, what is to be focused upon, very important. यस. सो हम लोग केस टेकिंग, अच्छे रेमेडीज, जहाँ जो आपने कभी, इसका रेमेडी तो वेबिनार में कभी हुआ नहीं, मेरा रेमेडी कभी वेबिनार में हुआ नहीं, इसका रेमेडी भी वेबिनार में हुआ नहीं है. नहीं. सो दोज प्लीज, I request and appeal you, don't miss it. It's a wonderful event, I'm telling you. आणि नाईक सर का रेमेडी का तो वो ट्रेलर तो आपने देख लिया. देखा, खतरनाक. भाई, हॉरर शो है. हाँ, फुल. डार्क फैसेट्स ऑफ ह्यूमन साइकी. यस. माय गॉड. and how can homeopathy change the dynamics of that person? Yeah, come on. So thank you all and लव यू ऑल. love you all.